project which I wanted to discuss with you in accountancy. That was on comparative study of cash flow statements. That I have developed myself. Earlier I was of the view that we have 4 tools of analysis in our course. 4 tools of analysis. Tools are used to make a product. We don't make a project on the tools. Project on the tools is rubbish. Tools were used to make this table. A cutter was used to cut the wood. A plane, a file was used to. So these tools are used in the workshop to make a product. This is what is meant when part B, tools were introduced. They were introduced that the student should be trained to make use of the tools to create something. वो होता है project. It's what I find is that people are developing a project on comparative statement. What? People are developing a project on common size, on ratios. No, ratios are to be used to prove something. ये है purpose हमारा. Then books I feel sorry for these students. In 3-hour question paper, we get a question on 2 balance sheets are given and prepare a cash flow statement. Say yes. Honey, 3 hours, students get 20-25 minutes to prepare a cash flow statement from 2 balance sheets. And people are making projects, giving them 2 balance sheets from the annual report of the company and to help them prepare a cash flow statement which is already made in the same annual report. तो आपने क्या कराना उसका? ये करना ही नहीं. So I was just against this. Cash flow statement is a tool. It should be used as a tool in the comprehensive project. When the project is completed, just find out what were the operating activities, what were the investing activities in that project, and you use this as a tool to prove something, the flow of cash, right? ऐसे यूज करना था उनको. लेकिन फिर मैंने सोचा है कि एक और भी बन सकता है इसके ऊपर. वो डेवलप किया था, वो आपके साथ शेयर करना था. लेकिन एक तो वो है, वो मेरे फर्स्ट पार्ट में आना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम ही नहीं मिला. Because something on some certain topics, subjects, I make sure that nothing should be left out. फिर एक कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग मिली मुझे, एक पेज, that was page Economic Times, page 11. ये है, इसकी एक फोटोकॉपी आपको मिलेगी. This is there in yesterday's Economic Times. Economic Times I use very often. So ये है a source material for a project. इस पर प्रोजेक्ट बनता है और 4-5 दिन में बन जाएगा, first class. And you will see how this information can be used as an authentic source material to help the students to. This is Aditya Birla Nugho, and CBSE co-opted me as a member of their committee for developing गाइडलाइन. सीबीएसई पब्लिश कर रही है, सबने गाइडलाइन की एक कॉपी ले लेनी है. उसमें भी मैंने एक ये बनाया, लेकिन ये आदित्य नुबा उसमें पुराना वाला है. ये आदित्य नुबा कल का है. उसमें जो है वो 1 साल 6 साल पहले वाला, कि जब बना रहे थे हम, उसी दिन आया तो मैंने कहा ये ले लो. उस पर बन सकती है, इस पर बन सकती है. और क्या करना किया है, देखिए 2 पीरियड दिए हुए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है 4 खानों वाली, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्वार्टर ले लो आप. ये करवाओ ना उनसे, ठीक है. और इनके जब रिपोर्ट ये आती है, the managing director, the chairman, they come on TV to announce, देखो हमारी सेल इतने % बढ़ गई, प्रॉफिट इतना बढ़ गया ओवर ए क्वार्टर. And who prepares this information for the chairman?
इट इज दीज वेरी स्टूडेंट्स यही कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आगे बता देते हैं कि सेल इतने परसेंट बढ़ गई, और अच्छे अच्छे वो क्या एरो हेड बनाते हैं, दिखाते हैं कि सेल हमारी इतनी बढ़ गई। सो दिस कैन बी डन एज ए होमवर्क, और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जेन्युइन मिल जाए ना कटिंग, ये कटिंग प्रोजेक्ट की फाइल में लगी हो, तो उसका फिर मजा ही कुछ और होता है कि देखने वाला कहता है कि यस। और सीबीएसई का एक सर्कुलर है, आपके स्कूलों में देखिए, उन्होंने कहा है प्रोजेक्ट शुड बी बेस्ड ऑन एवरीडे लाइफ। ये वर्ड एवरीडे 3 बार यूज हुआ उसमें। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं उठा लेने जो जिनका रेफरेंस एवरीडे लाइफ से है ही नहीं, बेकार। डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम एनी लिटरेचर रबिश अनलेस यू आर कन्विंस्ड दिस इज एवरीडे लाइफ एंड दिस इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट। और वो फॉर्मेट सीबीएसई की गाइडलाइन में दी हुई है, वो फाइनल है, और कोई फॉर्मेट नहीं एक्सेप्ट करना किसी का। एंड आई रेफर टू वन बुक, आई टेल यू द नेम ऑफ द बुक, रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय गुड्डी एंड हार्ट, गुड्डी एंड हार्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये है ऑथेंटिक, बाकी ये सारा ऐसे ही है। कभी भी किसी टूल के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बनाना। सो दिस कम्स, इसका कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, देखिए सेल बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है या क्या है। ये लिखा हो EBITDA, ये क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन होती है, पर होती है गुडविल पर या पेटेंट्स पर, ठीक है। सो ये है। उसके बाद नेट प्रॉफिट है, मैं दो को कंपेयर कर दो, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, और इसकी रूपरेखा कैसी होगी वो अभी आप देखोगे जब मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। नहीं हो, देखिए फर्स्ट पेज, दिस इज माय वे ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, रादर इट शुड बी एवरीवन्स वे, कि यू ऑलवेज प्लान समथिंग फर्स्ट, काम बाद में करना, पहले प्लान बनाओ। यू केम हियर, घर से प्लान करके चले, कैसे पहुंचना है, किस रूट से जाना है, so that you are there in time. This is my way, whether I do it this way or I do it on business studies or it's on any other topic. पहला दिन थोड़ी देर आप बैठो, उसके बाद बच्चों के साथ शेयर करो इसको। Students have studied this, planning, organizing, controlling, directing, सब कुछ है, प्लानिंग उन्होंने पढ़ी हुई है, ठीक है। सो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सब में ऐसे है, किसी में 9 पॉइंट बनेंगे, किसी में 8 बनेंगे। सो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, इवन अगर आदित्य नोवा का भी बनाना है ना, सो दैट विल बी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आदित्य नोवा इन द लास्ट क्वार्टर। बस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आदित्य नोवा इन द लास्ट क्वार्टर, बस ये हेडिंग बन गया उसका। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव? Objective to know whether revenue has improved, whether profit has improved or gone down. That's it. So period of study, in that case it will be quarter, but in this case, in this project, इसमें भी period of study जरूर लिखना है, because these are 2 cash flow, 3 cash flow, 4, 5 cash flows लेकर हमने compare किया। कैश फ्लो बनानी नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, कोई कैश फ्लो नहीं, बनी बनाई उठानी है। किसी कंपनी के साइट पे चले जाओ, पिछले 3-4 सालों की लेके बैठते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी नहीं है, ख्याल रखना। ये बनाने का काम जो है ये 3 घंटे में होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी 20 मिनट का क्वेश्चन आएगा, ये बनाने तो वहाँ है, प्रोजेक्ट में नहीं कैश फ्लो बनानी, नहीं बनवानी। आप क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चन करा दो, पहले शीटें दे के हमसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, बस वहीं तक रखो, 15-20 मिनट में वो कर पाए, दैट्स इट। प्रोजेक्ट इज ए डिफरेंट थिंग, कि वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज दे टू बी यूज्ड बाय दैट। गॉट इट? देन वी हैव अबाउट द कंपनी। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज स्टूडेंट्स मस्ट राइट समथिंग about the company whose cash flow statements you are going to analyze. Tell them to go to Google, ले आएंगे, बहुत कुछ निकाल के लाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं, प्रोडक्ट्स की फोटो ले आएंगे, कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब लोग
कहाँ इसका ऑफिस है मैनेजमेंट में, और कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो टेल देम टू गो टू गूगल एंड अब आपको मैंने रजत गुप्ता का नाम बता दिया, देखो खोल के देखना जरा कहानी कितने इंटरेस्टिंग है। कई जगह पे आपको लगेगा भी कि ये तो रजत तो बेकसूर है, लेकिन कई जगह पे लगेगा कि बच्चों बात तो की है, ठीक है। तो अब देखें, सो अबाउट द कंपनी जरूर लिखना, 1 पेज और 2 पेजेस इनफ। और ये इनकरेज करो दे शुड राइट इन ओन राइटिंग रादर देन टाइपिंग इट। पैरामीटर्स, लिमिट योरसेल्फ विद इन इट, खुला नहीं छोड़ना प्रोजेक्ट को, नहीं तो बेकाबू हो जाएगा। पहले तो कहता मैं ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, नो, लिमिट योरसेल्फ। प्लान बनाते हैं ना कोई काम करने तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जब करना पड़ता तो मुसीबत है। सो लिमिट योरसेल्फ विद इन द पैरामीटर्स एंड व्हेन यू आर स्टेटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स नंबर 2 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स भी केयरफुली लिखने हैं कि क्या करना है। ऐसे ही मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, अरे तारे कौन सा तोड़ के लाऊं, नहीं ला सकते, लेकिन ये अचीवेबल प्रोजेक्ट यहाँ नोट कर लो, ओनली अचीवेबल, जो वो भी लिखवाने, एक भी काफी है, 2 भी काफी है। दे आर एक्सपोज टू दिस थिंग ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। उनका अगर इंटरेस्ट पैदा कर दोगे तो बच्चे एंजॉय करेंगे। I have been attached with many schools, 5 or 6 schools, where I get the feedback from the principals कि पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि हमें तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ाया जाता है कॉलेज में, आप इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा रहे हो। हम उनके घर में लगा देते थे, ड्यूरिंग दी करेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट चलेगा, अगर 1 महीना प्रोजेक्ट चलना है, 15 दिन चलना है, तो 15 दिन इकोनॉमिक टाइम्स उनके घर आएगा और 15 दिन की कटिंग करेंगे। वो बैठते हैं टेबल पे, कटिंग करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि 10 दिन कुछ नहीं करना, सिर्फ कटिंग करनी है, पेस्ट करनी है और ये चीज नोट करनी है। कह देते हैं घर जाके, किसी ने हाथ नहीं लगाना, उन्हें पता है कि जेन्युइन कटिंग के नंबर ज्यादा मिलेंगे, फोटो कॉपी का कम नंबर मिलेंगे। इफ यू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एंड मोर प्रोजेक्ट होने के बाद कोई बच्चा ये कह सके हाँ मैं इससे रोटी कमाऊंगा, मेरे ये काम आएगी चीज, राइट। सो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें बताएंगे आपको चीजें बाकी की। सो सोर्स मटेरियल, ये सोर्स मटेरियल है जो आपको दिया, ये सोर्स मटेरियल जिसके ऊपर आपने काम करना है, वो सोर्स मटेरियल है। इसके ऊपर आपने टूल्स यूज करने हैं, 4 टूल, और भी टूल्स हैं, रेशो बड़ी थोड़ी है आपके कोर्स में, रेशोज का अंत कोई नहीं है, बट देन यू हैव टू यूज ओनली दोज रेशोज which are permitted in the syllabus as well as for the projects. Projects में थोड़ी सी ज़्यादा है ना, projects में थोड़ी सी वो भी यूज कर लो, no problem. It's your यूज के वो जरूर करनी है, nothing. Whatever is permissible or admissible, possible, वो यूज करनी है. Then after this is there, it is to be pasted. Then comes processing. इसको कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है, उसके लिए प्रोसेसिंग शीट्स बनती हैं। वो 1 दिन में 1 या 2 दिन में 1 कैसे बच्चे बनाते हैं। गिव देम टाइम 4-5 days. योर रोल इज ओनली ऑफ ए गाइड, काम सारा बच्चों से करवाओ। 1 दिन दे दो हफ्ते में कि भाई इस दिन दिखाना कहाँ तक पहुंचे हो। गलत है। कई बार हम देखते थे प्रोजेक्ट बच्चों के नहीं पसंद है, फाड़ दिया बिल्कुल, और इसका इतना इफेक्ट होता है, मेरा प्रोजेक्ट फट गया और डॉक्टर बलवीर सिंह के हाथों फट गए। मैं नहीं कि आप बनाओ दोबारा और इसको सामने रखो, जो गलती करी है दोबारा नहीं करनी। सो वन थिंग इट इंडिकेट्स हाउ सीरियस आई एम, टीचर की सीरियसनेस कितनी है अबाउट द प्रोजेक्ट। अगर टीचर ये कहेगा कि हाथ से कॉपी कर लो, लानत ऐसे टीचर की, करना ही नहीं है कॉपी, करवाना है। Even 2 weeks before the roll numbers were to be issued, the students couldn't, 1 or 2 students in one school couldn't complete this one. No, नहीं देना roll number जब तक खुद हाथ से लिख कर कंप्लीट नहीं करना। So this word spreads, भाई प्रोजेक्ट करना है तो दिसंबर 31 से पहले पूरा कर लो। That should be the target. But इतना भी डिस्करेज नहीं करना है, कोई स्लो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी दो टाइम। So it must not, I mean, kill the initiative of the student. So then last of all is conclusion. Let's see this.
Name of the project? Analysis of cash flows of Ajanta Arts Limited for 4 years. आप 5 की ले लो, 6 की ले लो, और कैश फ्लो पूरी नहीं लेनी, सुनो, ये 3 एक्टिविटी है, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्लो फ्रॉम और 2 ओपनिंग, सॉरी 1 ओपनिंग 1 क्लोज, ठीक है। तो 4 साल की 5 साल की ले। फिर जो कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो पढ़ाने से पहले नहीं कर सकते ये, पहले कैश फ्लो सिखाओ बच्चों को, फिर ये होगा। इतना इंटरेस्टिंग बना है ना ये, आप आई एम श्योर, मेरे तो कंस्ट्रेंट होते हैं, कई बार ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आप अगर सोच के कुछ और इसमें एंगल जोड़ोगे, प्लीज टेल मी, दैट विल ऐड टू माई इंफॉर्मेशन। देन वी हैव नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 लिखे हैं, बेशक 1 लिखो। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व हाउ द ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इनफ्लोज हैव बीन यूज्ड। पैसा आता है ऑपरेटिंग से, पैसा आता है फाइनेंसिंग से, हाउ दिस मनी इज यूज्ड। इन दोनों में से बेटर कौन सी है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग से पैसा आना जो बेटर है रादर देन किसी से मांगना। यू सी फाइनेंसिंग, फाइनेंस मैनेजर के काम होते हैं टू रेज फाइनेंस, फाइनेंस इकट्ठी करना, पैसे इकट्ठे करना, ये फाइनेंस मैनेजर का काम है। कौन कौन सी सोर्सेज से करनी है, लॉन्ग टर्म से कितने करनी है, फिर लॉन्ग टर्म के फिर आगे कौन कौन से हैं, डिवेंचर से कितने करने हैं, बॉन्ड से कितने करने हैं, शॉर्ट टर्म अगर है तो वो भी। फिर दूसरा होता है उसको इन्वेस्ट करना। तो इसमें ये है कि फाइनेंसिंग से इनफ्लो और ऑपरेटिंग से इनफ्लो, ये तो पता लग जाएगा हमें कि इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत कम, मैंने तो देखी भी नहीं है किसी की नेगेटिव आई हो, आउटफ्लो आती है। लॉस हो जाए, कंटिन्यूसली लॉस ही होते रहे तो फिर तो हो सकती है नेगेटिव, अदरवाइज ये तो पॉजिटिव ही होती है। समझ आई? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। लेकिन कोई ये नहीं है ब्लाइंडली कह दूं मैं कि कभी भी नहीं होगी, होगी क्यों नहीं? अगर कंपनी डाउनती है तो हो सकती है। टू नो द यूजेस ऑफ फंड्स, दैट इज हाउ द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी परचेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। फिक्स्ड एसेट्स कभी शॉर्ट टर्म से नहीं। मशीन खरीद ली शॉर्ट टर्म लोन से, अरे अभी वो यूज करनी भी नहीं शुरू करी, लोग पैसा मांगने आ गए, वापस करो। कैसे वापस करो? भेज दो, यही काम करना है। फनी। फिक्स्ड एसेट शुड बी परचेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। आपको तो पता होगा, जो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते थे हम, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का मतलब था वर्किंग कैपिटल फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स में मतलब होता था वर्किंग कैपिटल, राइट? सो वर्किंग कैपिटल की सबसे अच्छी सोर्स वाज ऑपरेटिंग। सबसे अच्छा वर्किंग कैपिटल वो है जो ऑपरेटिंग से है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ बोलते थे, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, वो बेस्ट गिनी जाती है। अच्छा, आइडिया तो तकरीबन वो ही है। वर्किंग कैपिटल में कई चीजें आती हैं, कैश फ्लो में ओनली कैश आता है। सो इस तरह से फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल दोनों को कह देते हैं। बेस्ट सोर्स फॉर वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल यू नो डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं, एंड देन द gestation पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी ख्याल में रखना है कि आज प्रोडक्शन शुरू कर दिए, आप बनाते हैं विंटर गारमेंट्स, और प्रोडक्शन भी अगर विंटर में शुरू करते हो तो वो प्रोडक्शन का gestation पीरियड भी देखना, उधर से विंटर खत्म हो गया और आपकी बिकेगी कब? तो बना दी पहले है। तो if you take 6 months to complete the entire production line, and you should start in the month of June, May or June.
अगर शॉर्ट टर्म का लोन लेके वर्किंग कैपिटल से शुरू कर दिया तो बाय द एंड ऑफ अगस्त लोग पैसा मांगने आ जाएंगे, सितंबर, तो फिर तो उनको कह दिए स्वेटर ले जाओ और बनाने ले जाओ और नहीं मिलेगा नहीं। सो वर्किंग कैपिटल की सोर्स कितना पैसा आप, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये भी एनालाइज करना है। आप देखेंगे कि ये इनफ्लो कहाँ कहाँ यूज की है, किसमें यूज की है, ये जस्टिफाई करना। एक एक पॉइंट लिख दे बच्चा तो वही समझो कि उसे कंसेप्ट पता लग गया। सिर्फ वो ये नहीं जानता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनानी, उसका बैलेंस निकालना और काम खत्म। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यही है, एप्लीकेशन का यही है मतलब। सो इफ द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन सोल्ड, चलिए कभी कभी पुराना हो जाए, कैन एनीबॉडी टेल मी, सब बता पैसा क्या करना चाहिए? फिक्स्ड बेचने से जो पैसा आए उसका क्या करना चाहिए? दूसरी मशीन खरीद लो, दूसरी मशीन खरीद लो। दूसरा, जिस लोन से पैसा ली मशीन खरीदी थी, मेरे तो समझ में दो ही आते हैं, गॉट इट? सो ये देखना है आपने कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। 12th क्लास में हमें बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर, आप 5 ले लेते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कोई चीज अपने पास से भी बीच में ऐड करनी पड़े जिसका इफेक्ट आपको तो पता है, बच्चों को नहीं पता, आप ऐड कर दो 2-3 बातें उसमें, आप 2-4 बातें और ऐड कर दो, उसके बाद बच्चों से पूछो नहीं आती तो ठीक है हम बताते हैं ये है इसका मतलब। वो डिसीजन ठीक था या गलत था? आपने कह दिया ये मशीन बेच के व्हाट हैपेंड, ओह किसी होटल में जाके खाना खाया, हो गया ना कल्याण। पीरियड ऑफ स्टडीज, ये चारों की डेटें लिखी हुई हैं, राइट? अबाउट द कंपनी, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, सेगमेंट्स, सेगमेंट्स जानते हो? सेगमेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। मारुति की 16 है, नेम्स ऑफ द कार्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। कौन सी सेगमेंट अच्छी जा रही है, सबसे अच्छी कौन सी जा रही है, किसी को बंद कर देते हैं, किसी को इम्प्रूव करते हैं। अब सब कारों वाले जो है ना ऑटोमेटिक बनानी शुरू कर दी उन्होंने, कोई ना कोई चीज ऐड कर देते हैं। सम फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी, अबाउट द कंपनी एक पेज बनाना है, कोई बच्चों का काम है, आपने उनको कहना बनाएंगे, बनाएगा। टूल्स ऑफ एनालिसिस, एक ही टूल है वो कैश फ्लो का, ठीक है? You can raise hand if anything. I am not rushing through. I am not of that nature. थोड़ा करेंगे उतना जिससे मेरी तसल्ली जो पहले कर जाए। I don't want to waste my time as well as your time. If you are here to get something from me and I am in a position to give it, fine. So I will not leave anything. Still, I told you I am not perfect. If anything is left, you will point it out me. If I am able to add something. Now here are the parameters. ये parameters हैं, ये parameters, ये आप देखो, ये 3 पेजेस हैं parameters के, तीनों में ही parameter लिखा हुआ next 3। ये 3 हैं वही ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग की जो सोर्सेज हैं किस किस काम आती हैं, ये वो है पैरामीटर्स। इन पर आपने उनको टेस्ट करना है, क्या उन्होंने ये काम किया। अगर कोई चीज नहीं गिवन, सो दिस आई एम रिपीटिंग, कि आप उसमें 2 चीजें जोड़ दो, बीच में नीचे लिखवा दो उनको, और फिर उसी पर वो प्रोजेक्ट, कम से कम जो आपने वेबसाइट से ली हुई है वो तो जेन्युइन है, उसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर दिए, इसलिए कि यू वांट, मेन पर्पस हमारा बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, कंसेप्ट क्लियर करना। ओके, सो देन वी हैव रीपेमेंट ऑफ लोन, बिल्कुल ठीक है, रिजर्व बनाओ, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
गुडविल, खैर जैसे बनेगी आएगा तो उसका इफेक्ट ये होगा, गुडविल इंप्रूव होगी. इट्स नॉट इन ए वे यूज फॉर दैट, बट इट इज ऑटोमेटिकली यूज व्हेन profits are increasing and increasing and increasing. Then second is cash flow from investing activity, inflows and outflows, sale of investments, fixed assets, interest income, dividend income. कुछ और है? कुछ और ऐड कर दो, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए वो उसमें. Outflows, purchase of investment or fixed assets, anything else? Investing होनी चाहिए. Then you know about financial and non-financial companies. उसका भी ध्यान रखना है. Then last parameter is cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. Inflows, issue of shares, debenture, bonds, long-term loans. Outflows, debenture repayment, loans repayment, payment of dividend, and payment of interest. और कुछ ऐड कर लो, ठीक है. अब आपने देखना है, जैसे आपके पास सोर्स मटेरियल है, वो जो चेंजेस आई हैं वो कहाँ के लिए हो सकती हैं. एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट. Source material, operating, investing, financing cash flows, along with the opening and closing balances of cash and cash equivalents, have been picked up from the site of the company. ठीक है, ये आगे देखो, ये 4 साल के हैं और ओपनिंग बैलेंस है पहले, ओपनिंग बैलेंस, देन क्लोजिंग बैलेंस आ गया. Now this closing is the closing balance 51,000. ये opening बन गया next year. Same cycle चलता रहेगा. Now I have cash balance. नीचे का cash balance देखो, cash. सोचो तो ये 51,000 it runs into crores. 51,000 करोड़ और 81,000 करोड़ कैश रखा हुआ है, दिमाग खराब है. यानी इतना कैश किस लिए चाहिए? कैश हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए है. कुछ दिमाग में आती ना बात, ये कुछ कहीं गड़बड़ है, ये गलत काम कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर कितना कैश हो गया? ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लिखनी और बच्चों को समझ आ रहा है. नथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक माय स्टूडेंट्स टू फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, नहीं कर रहे. हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे काम करेंगे ना वो कमाल के. Just about last week I went to a optic house where I get my specs made. As I was telling the person that I need some improvement here, there was some other customer standing there. He was observing me. Anyhow, I didn't know whether he was observing or not. Then the manager asked me that, sir, give me your name and phone number. जब ये बन जाएंगे तो आपको फोन. I said, right now, Dr. Balbir Singh. उसके कई कान शुरू हो खड़े हो गए. सर आप अभी भी पढ़ाते हैं? मैं कहा यही पढ़ाना है, इज माई पैशन, ये तो मैं छोड़ नहीं सकता. अभी भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ. कहाँ पढ़ाते हैं? मैं कहा जो बुला ले. अच्छा, मैं आपके पास पढ़ा था, एक स्कूल का नाम लिया और वो स्कूल बहुत बिगड़ा हुआ था. दैट वाज इन 97. कहते जी ठीक है. मैं आई पास्ड आउट इन 98. मैं कहा वेरी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सर बस वो सीए कर लिया मैंने. आई एम प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन सीए, रियली वेरी गुड. मैंने कहा फिर आपने मेरे से डांट भी खाई होगी सर जी, पता नहीं क्या कुछ खाया. एंड ही टच्ड माय नीज. ही इंट्रोड्यूस्ड हिज वाइफ.
और छोटा सा बच्चा था 2 साल। कहते ये, मैं कहा अच्छा वेरी नाइस गुड, आप क्या करते हैं? सर हम दोनों इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये काम भी वहीं हो गया था। कहते हैं हाँ वहीं से हो गया था। और ही सीए और वाइफ जो है शी इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड, MBA। तो बड़ा अच्छा लगा। और वो उसने तारीफ करी, मैं क्या बंद कर दिया करते, कुछ नहीं है, पता नहीं जो मन में आया तुम्हें बढ़ा दिया, और जब गुस्सा आया तो टिका दिया। तो दैट्स ऑल। एनीहाउ, सो यू हैव टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। रेस्ट उनके पास जिंदगी पड़ी है, अभी कॉलेज में जाना है और कहीं जाना है, वहाँ जाके पढ़ना है। लेकिन आपके स्टूडेंट कहीं ऐसे ना बन जाए जो हमारे ही देश में होता है। 2 साल तो मैं पढ़ते हैं बिजनेस करना स्कूल में, फिर 3 साल कॉलेज में, फिर 2 साल MBA, कितने हो गए? 7 साल। 7 साल के बाद बिजनेस सीखा और ढूंढते हैं नौकरियां। जब बिजनेस सीखा तो करो ना बिजनेस। एक किताब का नाम नोट करो, आप पढ़ोगे लेकर, बी हंग्री एंड बी फुलिश। बी हंग्री एंड बी फुलिश, ये किताब एक लड़की ने लिखी है जो MBA फ्रॉम अहमदाबाद, नाम मुझे भूल गया उनका के। उसने 25 MBA को इंटरव्यू किया है, and many of them were getting salaries, mind-boggling figures, 5-5 लाख महीने की सैलरी लेते थे, लेकिन उनके अंदर भूख लगी हुई थी, वो उन्हें टिकने नहीं देती थी। बी हंग्री एंड बी फुलिश, किस बात की? काम करना, अपना करना। अगर ये बंदा मुझे 5 लाख देता है तो इसके लिए मैं 8 लाख का काम करता हूँ, तब 5 देता है मुझे। तो इफ आई एम वर्थ 8 lakhs, कहते इस भूख ने हमें जिंदा नहीं रहने करने। आप लोग सब MCOM है किसी में हिम्मत नौकरी छोड़ के काम करने की? हम पंजाब में एक कॉलेज, अमृतसर में खालसा कॉलेज, आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हम यहाँ से लेकर जाते थे टीचर अच्छे वहाँ। एक हमारा स्टूडेंट गुरचरण सिंह, ही बिकेम द मैनेजर ऑफ पंजाब सिंध बैंक, सीनियर मैनेजर, बहुत बड़ी पोस्ट में रिटायर हुआ। उसको हम यहाँ से लेके गए, मेरे स्टूडेंट भी थे, और मैंने प्रिंसिपल को कहा भी देखो हमारे किसी टीचर को ये नहीं कहना नौकरी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने उसी दिन चले जाना। उनको आदत थी, कोई लेट आया नौकरी करनी है या करनी है, वो कहते जनाब मेरे बाल बच्चे हैं, नौकरी तो करनी मैंने, तो फिर आगे से ये काम नहीं करना। ये मैं कर दिया। SS श्याम सिंह कपूर थे प्रिंसिपल, तो मैंने कहा नहीं कहना। वो फिर नहीं बाज आए, उन्होंने गुरचरण सिंह को कह दिया, बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके गए कि गुरचरण सिंह जी कॉलेज खुल चुका है 3 अक्टूबर का, 3 अक्टूबर को दिल्ली से गए हो, 5 को पहुँचे, तो आप 5 को आए, 3 को नहीं आए, 4 को नहीं आए, 5 को आए, नौकरी करनी नहीं करनी? कहते जी थैंक यू वेरी मच, ये है रास्ते, मैं नहीं करनी। आप लोगों को अपनी वर्थ नहीं पता। नॉन कॉमर्स की लड़कियां जो हैं वो घर में बुटीक चला रही। जयपुर एक इसी तरह का सेमिनार था, हम गए, वहाँ बंदेज का माल मिलता है। बंदेज जानते हो ना? अरे क्या शानदार, देखने में कुछ गांठे लगती हैं, खोलते ना क्या बूटी निकलती है। 100 रुपए की साड़ी लेते हैं वहाँ, 500 की यहाँ बेचते हैं। महीने में एक बार जाती हैं वो, एक दुकान में भीड़ बहुत लगी। शाम को गए ना हम भी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, बेटियों ने कहा था हमारे लिए लेके आना, तो वो सब बांध दो जी, इतना बांध दो जी, इतने बांध दो। ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। कोई हमें पूछता था ये एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है। अरे बुक क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप तो अंदर है आपके, आप सिर्फ उसको थोड़ा सा दो, इशारा करो, वो जागेगा। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसमें स्मेलिंग पावर है, सूंघने की शक्ति है। कौन सी? जैसे कीड़ी में होती है, वो एक रेत के ढेर में पड़ी हुई चीनी के दाने को ढूंढ लेती है, चीनी पे पहुंचेगी, सारी रेत को छोड़ देगी। वो पावर, बाप का चला हुआ बिजनेस खुद बैठ जाना बच्चे ने उसकी गद्दी पर, ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की जाए, वो है
वो है कॉमर्स पढ़ने का, बिजनेस पढ़ने का फायदा। तो बच्चों में ये सेंस भर दो, कह दो उनको भाई जिंदगी में नौकरी नहीं करती। हम भी कहते रहे 91 तक कहते रहे नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। आप क्यों करते हो सर? हमें कहते गुड़ मत खाना, खुद खा रहा है। ये पिंच की मुझे, तो मैंने 93 में काम शुरू किया अपना, इन द नेम ऑफ माय वाइफ, एक्सपोर्ट फर्नीचर, कार्ड फर्नीचर यूएस को एक्सपोर्ट किया। 3 साल में पैसा ही पैसा इकट्ठा हो गया। 50,000 से शुरू किया था, 3 साल में आई कुड गैदर अराउंड 15 lakhs। फिर भी मेरा पढ़ाना बंद हो गया, पढ़ना बंद हो गया, उसी चक्कर में पढ़े रहो। जो हम बिजनेस करने के तरीके सिखाते हैं, किताबों पर बेस्ड हैं, उनसे बिजनेस होता नहीं है। एक्चुअली बता भी देंगे, बिजनेस में कई चीजें और सीखनी पड़ती, करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर जंप करोगे तालाब में तभी तो है ना। हमारे साथ में जो तैरना सिखाया जाता है, वो भी टीचर, तैरने वाला टीचर भी अंदर जंप करने से डरता है कि नहीं बच्चों तुम ऐसे करो, भगवान भली करेगा, छलांग मारो। अरे नहीं, अंदर जाओ, खड़े हो, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पर, डरो नहीं, आ जाओ। ये होता है, तब पता लगता है। उसके बाद भैया हमें एक्सपोर्ट पढ़ाने का मजा ही कुछ और आता है। जब किया ना 3 साल 4 साल, फिर धीरे धीरे उनकी चिट्ठियाँ आती जाए, जी क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर। मैं कह जाओ यार, हमें किताबें भी पढ़ाना भी तो है ना, दैट्स माय पैशन। ये तो ठीक है, ऐसे कई चीज़ें सीखी है ना। आई कैन टेल माई स्टूडेंट्स, हाँ बिजनेस में पैसा, आई कुडंट बाई ए मारुति कार विद सर्विस ऑफ 30 years में, और 94 में हमारी मारुति आ गई, खरीद नहीं सके। सच इज द बिजनेस, सच्चा और सुच्चा काम करो बस। सो कम हियर, बैक हियर, तो इधर आए। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज गिवन, कम टू द नेक्स्ट पेज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पकड़ो, देखो ये है, अच्छी तरह बता दो उनको। इट सीम्स दैट लॉट ऑफ मनी हैज बीन लॉक्ड इन कैश एंड कैश। बिल्कुल ठीक है। कितनी लॉक की हुई है? ये देखो लॉकअप 51, 81,000 है लॉकअप। आगे जहाँ किसी ने डांट लगाई होगी, 12 में अकल आ गई, 13 में फिर अकल आ गई। एक बात तो ये लिखनी है नहीं? ये हुई ना एप्लीकेशन। 2 बैलेंस शीट पे कैश फ्लो बना दो, क्या है? अरे बच्चे कुछ सीख के जाएंगे, आपके गुण गाएंगे। This can be used for expansion after keeping some money for working capital requirement. Expansion करो, ऐसे लो, पैसे रखे हुए, क्या करने इतने पैसे? उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैक, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो 15,000 करोड़, 20, फिर ऑपरेटिंग से इनफ्लो कम हो गई, फिर बढ़ गई। ग्राफ बन सकता है इनका, ग्राफ बन सकता है, बनवाइए, विजुअल अपील आएगी उससे। In 2011, the inflow of cash from operating activities increased by 4,700 crore. This indicates 30% increase over 2001, which is good. लिख देना ऐसे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है कंपैरेटिव वो बनाने के लिए, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करो इसमें। Then we have 2012, cash inflow from operating activities decreased by 1,588. Outflow हो गई, anyhow. Then this means that the cash inflow decreased by 7.82%. This may be due to decrease in cash, decrease in sales, or higher volume of credit. उधारी बेचे जाओगे तो कैश कहाँ आएगा? ठीक है ना, वो करते हैं ना वर्किंग कैपिटल, कैश में, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल का होता है ना। करंट असेट्स एंड करंट असेट क्या करते हो भैया? हाँ 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 वही, तो डेटर्स बढ़ते जाएंगे तो कैश फ्लो कम होता जाएगा, ठीक है ना। सो ये रीजन लिख देने इसमें। तीसरा में है 2013, द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगेन पिक्ड अप ट्रेमेंडसली।
It increased by 6,688 crores, which amounts to 35.74% increase, which is really very good. This may be due to recovery from the debtors. ठीक है? बच्चों को 2-4 पॉइंट बता दे रहे हैं. Recovery from the debtors and more and more cash sales. Over the years from 2010 to 2013, the cash inflow has increased by, in all these years, increased by 9,800 crores, which amounts to 62 point. इतनी increase हो गई अपने सारे 4 सालों के अंदर इसमें. अब आया observation. पहले हर एक पर कमेंट करना है, फिर observation. Investing activity पर observation. पहले कौन सी थी पीछे? Operating. Now it is investing activities. Investing activities indicate the growth or underline this. Investing activities से कंपनी की growth. Expansion होगी तो यहाँ होगी. ज़्यादा मशीन खरीदी जाएगी तो growth होगी. Indicate the growth orientation of the firm. The investment in fixed assets is increasing year after year. देखिए नीचे 11, 12, 13 increase. This is 42%, then 119% increase, then 74.74% increase. The firm is investment minded. कह दिया आपने. And firm is investment minded. कैसे पता लगा? इन्हीं फिगर से है. Maximum increase of 42% occurred in 2011, followed by 2012 when the investment increased by 190%. In 2013, it increased by 74.74%. This policy of the firm will definitely pay in the long run. The production will increase, sales will also increase, profit will also increase, and all that. Then the observation, next observe financing activities. In 2011, cash inflow from financing increased 5,032 crores, 45% over the last year. This was used partly for investment in. Underline कीजिए. Why did I say this? क्योंकि ऊपर देखा ना इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज हो रही है, तो ये पैसा यूज किया होगा. Then next day 2012, there is an outflow of cash of 28,100. This is because the repayment of loan, and it may also be because of payment of dividend, क्योंकि operating में काफी पैसा आ रहा है. In 2013, there is a cash inflow of 22,733. It appears that the firm has taken more long-term loans to finance the growth activities. Growth activity means investing. अच्छा आगे देखिए, ये इससे भी अच्छा आप बना सकते हैं. ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4 साल की, और ये इन्वेस्टिंग नीचे चले गई, नेगेटिव है. ठीक है, कलर करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा. और आप कैसे भी दिखाना चाहिए, कोई और विजुअल फील मस्ट बी देयर इन द प्रोजेक्ट 5. देन ये फाइनेंसिंग देखिए, पहले 2 साल और तीसरे साल में आउटफ्लो है. और आगे देखिए क्लोजिंग कैश बैलेंस. एक ओपनिंग का भी बना सकते हैं आप. ये क्लोजिंग का, मेरे हिसाब से क्लोजिंग का ज़्यादा ऐसा है, बिकॉज आई हैव टू डिसाइड अबाउट वर्किंग कैपिटल एंड अदर डिटेल, और ऑल्सो टू क्रिटिसाइज व्हाई दे आर कीपिंग सो मच ऑफ कैश इन हैंड. Then we have conclusion. Here है conclusion. It has been noticed that in the year 2010 and 2011, an exceptionally high amount of cash and cash equivalents have been held by the firm. The company took care of this fact and reduced it in the next 2 years. In the year 2012, though it is less than the earlier years, it is still on the higher side. Cash and cash equivalent should be sufficient for working capital needs only. The firm should, well, if it is a trading business में तो कह सकते हैं
कोई मशीन नहीं लगानी है, कोई कुछ नहीं लानी, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी है। जो ट्रेडिंग बिजनेस है, बनी बनाई चीज़ें लानी और बेचनी है। यू गेट द पॉइंट? देयर यू कैन हैव एन एक्सेप्शन, वो भी लिख सकते हो कि अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस है तो ये भी हो सकता है। दिस इज एप्लीकेशन माय डियर colleagues. This is how I put it and I look at it. It should also think, the firm should invest more in fixed assets in the coming year. It should also think of paying back the borrowed money so as to reduce the interest burden. Moreover, it is also desirable in view of the higher cash inflows from operating activities, which is also the best source for working capital. Right? So, this project will be completed within 2-3 weeks. और एक अच्छा valuable project in the real terms ये बनाना है। आपके 40 बच्चों में से अगर 30 भी अच्छे 30-35 भी सीख जाए, आप पास। ठीक है? So this is what I read about this project on cash flow. This is something new which has never been done so far. Okay, kindly give your feedback on that. And I would like to request, sir, Dr. Sir, that one panel discussion topic, sir, if you could give. Which one? Panel discussion. Some panel discussion we are going to, conduct. Is it possible? Can be decided. So a Not couple. one. Okay. Cannot be many. Okay. Particularly those where there are confusions in the mind of teachers. All right. Such topics. Maybe. Can be taken as for the panel discussion. Companies Act. Pardon? Companies Act, sir. Companies Act 13 can be taken for the panel discussion. The Companies Act 2013, can this be taken as a panel discussion topic? कंपनीज एक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। हम बात ओनली वर्ड भी उसमें ऐड नहीं किया जा सकता ना डिलीट किया जाए। इट इज ओनली द इंटरप्रिटेशन। उस पर डिस्कशन हो सकती है, कोई किसको कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है। It is possible, I agree to that. So that's fine. Companies Act, if we conduct a panel discussion on, say, Companies Act 2013,
say in next 15 days. So how many would like to come forward to be a member of this panel? So, yeah, next 15 days, is it fine? So, feedback form is coming to you. You please write your name over there. So this topic is there, Companies Act 2013, and for say, sir? I suggest that in principle we accept that panel discussion should be there rather than just one person speaking and doing everything, or two persons speaking. There were more than one person, 4 or 5, Right. and then they are involved in 1 hour or 2 hour, 1.5 hour discussion. I agree to it in principle. Right. But these people are, some of them, I don't know, स्कूल कितनों के बंद हो चुके हैं? Raise hand. अच्छा ये है. Because people generally plan going out during vacation. Okay. So better it will be after the vacation. So panel discussion will be there. That will be a little different from what the routine thing is done. So maybe in month of July, what do you say? Yes, after July or August or July, early July or. Yeah, so that's why we can keep it in month of July. By the time we will be in touch, okay? Now when you, not this one, when we would be, the panel discussion would be say 4 or 5 people would be there, right? They would be discussing, and Dr. Sir would be there, and it may be at our Noida office or at Rohini. See, we have our studios over there, properly maintained studios are there. So those quality we won't be able to create over here, right? You will enjoy, you will come, Yeah, wherever there is will, there is a way. So these feedback forms are coming to you. Kindly give your feedback.